Hello, my lovely students. Welcome to Mathological. This is the 17th session on permutations and combinations. Start करते हैं session. And if you've not already subscribed to the YouTube channel and like the content, then make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. You can also join the Telegram channel or can message me on Telegram at ADITYAKT. So first question of this session. In how many ways can 3 or more balls be selected out of 9 blue balls, 8 green balls and 7 red balls such that if part A, if all balls are similar, and part B, if all balls are different. So if you can recall, we discussed this concept in a previous session that if all items are similar, similar implies identical. Okay, so if all items are similar or identical, identical है यानी कि सेम ही है, सेम ही है. So if items are same, so number of ways of selecting one out of them. नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? एग्जैक्टली वन. नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू आउट ऑफ देम बिकॉज सारे ही आइटम सेम है हमारे. सो फॉर एग्जाम्पल लेट अस से इफ यू टेक 4 balls that are identical, all blue balls, so number of ways of selecting 0 balls will be equal to 1. Number of ways of selecting 1 ball will also be equal to 1. एग्जैक्टली 1 ball, कोई भी एक बॉल सेलेक्ट कर लो. इफ ऑल 4 आर ब्लू तो किसी भी एक को पिक कर लो. ऑल मस्ट बी आइडेंटिकल, साइज सेम होगा, कलर भी सेम है. सो 2 balls पिक करने का वे any 2, exactly 1. 3 balls, again any 3, exactly 1. And finally 4 balls, that will also be exactly 1. Total ways will be 5, or basically if there are n balls, total ways will be n plus 1. Okay, but if all items are distinct or different, if all items are distinct, so even if the color is same, everything else about the ball should be different. If all items are distinct, in that case number of ways to select 0 balls will be equal to NC0, because out of n items which are different items, so out of n different items if we are selecting R items, number of ways will be NCR. So 0 balls के लिए NC0, for 1 ball it will be NC1, for 2 balls it will be NC2, and so on till for n balls NCN. So total sum of all these will be NC0 plus NC1 plus NC2 till NCN. That is 2 to the power n, because for every ball we have two choices, either to select it or to reject it, or total balls are n, so 2 to the power n will be total choices for us. Is that clear? Okay, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं. So अपना क्वेश्चन पार्ट ए कह रहा है solve if all balls are similar or identical. If all balls are similar, we have 9 blue balls, 8 green balls, 7 red balls. In how many ways we can select 3 or more balls out of these balls? ठीक है. Since there is no other condition, यानी कि it could be a possibility that we are selecting 2 blue balls, 3 green balls, but 0 red balls. यानी कि it can be possible कि किसी कलर की एक भी बॉल ना सेलेक्ट की जाए. So that is possible. Or it could also be 3 blue balls and 0 green and 0 red. So that is also possible, यानी कि all balls are of exactly one color. So that is also possible, यानी कि सारे cases possible हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है. Either all 3 colored balls could be selected, or exactly all balls can be of one color, or some balls of one color, some of other. So all cases are possible. So पार्ट ए में आंसर क्या होना चाहिए? टोटल केसेस हमारे कितने बनेंगे? अगर यहाँ पे 3 balls की बजाय होता कि 0 balls भी सेलेक्ट कर सकते, 1 ball भी सेलेक्ट कर सकते, 2 ball भी सेलेक्ट कर सकते, टोटल वेज विल बी, सिंस देयर आर टोटल 9 blue balls, तो टोटल वेज क्या होंगे ब्लू बॉल सेलेक्ट करने के? इधर 0 blue balls विल बी सेलेक्टेड, और 1 blue ball, और 2 blue ball, till total 9. So total ways for blue balls will be 10. From 0 to 9 total ways are 10. So total ways of selection for blue balls are 10, which is n plus 1. Similarly for green balls this will be 8 plus 1, which is equal to 9. Either 0 green balls will be selected, or 1 or 2 or 3, till total 8 green balls, यानी कि 9 ways for green balls. Similarly for red balls it will be n plus 1, which is 7 plus 1, which is equal to 8. So 10 into 9 into 8, total ways are equal to 720. So if there was no other condition, total ways would have been 720, but condition हमारा है 3 or more balls should be selected. So we have to subtract those cases जहाँ पे कि lesser balls are selected, यानी कि 0 balls are selected, that has to be subtracted, or 1 ball is selected, or 2 balls are selected. So those cases we have to subtract. If 0 balls are selected, that implies कि blue balls are also 0, green are also 0, red are also 0, यानी कि exactly one case will be there for this. ठीक है, 0 blue, 0 green, 0 red, exactly one case in this case.
प्लस वन बॉल इज सेलेक्टेड, सो यहाँ पे वन बॉल में क्या है, इधर इट विल बी वन ब्लू और वन ग्रीन और वन रेड, इजंट इट सो? ब्लू ग्रीन रेड, तो वन बॉल वाले केस में इधर इट कुड बी 1-0-0, वन ब्लू, जीरो ग्रीन, जीरो रेड, और इट कुड बी 0-1-0, और इट कुड बी 0-0-1, यानी कि थ्री वेज विल बी देयर. And if there are two balls, either two balls will be of same color or of different colors. तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बनेगी, either both balls will be of the same color या फिर different colors की होंगी. Isn't it so? क्या ये क्लियर है? ठीक है, okay. So if two balls are selected, so either two balls will be of the same color. In that case this could be 2-0-0, 0-2-0, 0-0-2, or of the different color, यानी कि 1-1-0, 1-0-1 and 0-1-1. So total cases that we have to reject or subtract will be the three cases, तो ये हमने काउंट कर ही लिए हैं, तो 6 more cases, so plus 6, so we'll be subtracting 10 out of 720, so answer will be 710 ways will be there to select 3 or more balls, because 3 balls वाला केस हम सेलेक्ट कर सकते हैं, that is fine. So 3, 4, 5 those cases will be selected, total ways will be 710 is this case. क्या ये क्लियर है? ओके, ठीक है. And in this case, is that clear? Okay. सेकेंड केस लिखते हैं, पार्ट बी, ऑल बॉल्स आर डिफरेंट. इफ ऑल बॉल्स आर डिफरेंट, यानी कि ब्लू बॉल्स भी जो हमारी है सेम नहीं है, ऑल आर डिफरेंट. तो सिंस ऑल बॉल्स आर डिफरेंट, यहाँ पे हम कैसे काउंटिंग करेंगे? दिस विल बी लाइक एनसीआर. तो इफ आर आइटम्स आर सेलेक्टेड आउट ऑफ एन, एनसीआर विल बी नंबर ऑफ वेज. ठीक है, या फिर इन जनरल अगर बात करेंगे, टोटली इंडिपेंडेंटली बात करेंगे, सो इन दैट केस फॉर एवरी बॉल देयर आर टू चॉइसेस, या तो सेलेक्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे. सो अगर सिर्फ 9 ब्लू बॉल्स हुई, 2 to the power 9 केसेस बनते. Only 8 green balls, 2 to the power 8 cases बनते. Similarly, only 7 red balls, 2 to the power 7 cases बनते. So if everything else is not there, total cases कितने बनेंगे? 2 to the power 9, 2 to the power 8, 2 to the power 7 मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि टोटल हो जाएगा 2 to the power 9 plus 8 plus 7. बेसिकली सिंस सेम कलर की बॉल्स भी डिफरेंट है, टोटल बॉल्स हमारी आ रही है 9 plus 8 plus 7, which is 24 balls. So for every ball there are two choices, 2 to the power 24 will be total cases. टोटल केसेस, बट हमारा कंसर्न है देयर शुड बी 3 और मोर बॉल्स, यानी कि 0 बॉल्स नहीं चलेगी, 1 बॉल नहीं चलेगी, 2 बॉल नहीं चलेगी, 3 और मोर बॉल्स शुड बी देयर. तो टोटल में से विल बी सबट्रैक्टिंग दोज केसेस व्हेन देयर आर 0 बॉल सेलेक्टेड और 1 बॉल इज सेलेक्टेड और 2 बॉल्स आर सेलेक्टेड. 0 बॉल वाले केसेस कितने होंगे? स्टिल 1, बिकॉज तीनों ही कैटेगरीज से हमें 0 बॉल सेलेक्ट करना है, सो एग्जैक्टली 1 केस. If one ball is selected, now this time we have total 24 balls, so one ball selection के वेज होंगे 24C1. ठीक है, 0 के लिए 24C0 या फिर डायरेक्टली हमने 1 लिख दिया. प्लस इफ 2 balls are selected, total cases will be 24C2. So this will be our answer, 2 to the power 24 minus 1 plus 24C1 plus 24C2. This will be our answer. क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ओके, क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन. स्लाइट वेरिएशन है क्वेश्चन. The question is, in how many ways can 3 or more balls be selected out of 9 blue, 8 green and 7 red balls if at least one ball of each color must be selected? यानी कि इस बार कंडीशन क्या है कि at least one ball of each color must be selected. यानी कि पहले हमने जब केसेस लिए थे तो 9 ब्लू बॉल्स के लिए टोटल केसेस कितने बने थे हमारे? 0 ब्लू, 1 ब्लू, 2 ब्लू, फिर टोटल 9 ब्लू. बट इस बार हमारा 0 ब्लू वाला केस नहीं रहेगा. सो एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर मस्ट बी सेलेक्टेड. इजंट इट सो? एटलीस्ट वन बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे 1 ब्लू, 2 ब्लू टिल 9 ब्लू. लेकिन इस बार टोटल वेज कितने होंगे? पार्ट ए के लिए पहले बात करते हैं. व्हेन ऑल बॉल्स आर सिमिलर और आइडेंटिकल, तो टोटल वेज विल बी 9 दिस टाइम, नॉट 10. 9 फॉर ब्लू बॉल्स और 8 फॉर ग्रीन बॉल्स, 1 ग्रीन, 2 ग्रीन, 3 ग्रीन, 8 ग्रीन मल्टीप्लाइड बाई 7 फॉर रेड बॉल्स. टोटल केसेस विल बी 9 into 8 into 7. और सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से कौन से केस हमें चाहिए? 3 और मोर बॉल्स शुड बी सेलेक्टेड. इजंट इट सो? और जब हम कह रहे हैं कि एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर हैज टू बी सेलेक्टेड, यानी कि मिनिमम भी हमारा होगा, तो 1 ब्लू, 1 ग्रीन एंड 1
red will be selected. तो minimum 3 balls will always be selected. यहाँ पे कोई भी केस सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा बिकॉज मिनिमम 3 आर एनीवे सेलेक्ट 3 कलर की बॉल्स हैं और हर एक कलर का एक एक बॉल सेलेक्ट करना है, तो मिनिमम 3 बॉल्स मस्ट बी सेलेक्टेड ऑलवेज. तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कोई भी केस नहीं करना है, तो -0 करोगे, आंसर आ जाएगा 9 × 8 × 7 दैट इज इक्वल टू 504. Our answer will be 504 in this case. Okay. Clear? Now just in case if question was कि 5 और मोर बॉल्स हमें सेलेक्ट करनी होती तो not 3 or more but 5 or more. So in that case total 504 we would have subtracted cases when exactly 3 balls are selected or exactly 4 balls are selected. Exactly 3 balls के selection के number of ways कितने होंगे? Exactly 1 blue 1 green 1 red since all colored balls have to be selected यानी कि 1 way होगा, प्लस ये 4 balls are selected तो हमारी किसी एक कलर की 2 balls होंगी बिकॉज हर एक कलर की एक एक बॉल तो फिक्स है. नाउ दिस 1 एक्स्ट्रा बॉल कैन बी द ब्लू कलर्ड बॉल और द ग्रीन कलर्ड बॉल और द रेड कलर्ड बॉल, यानी कि यहाँ पे केस बनेगा हमारा ब्लू ग्रीन रेड में इधर 2 1 1 1 2 1 1 1 2 टोटल 3 केसेस. तो 504 - 4 यानी कि टोटल 500 ways will be there to select 5 or more balls when all balls are similar. Clear है? Okay. Now part B. When all balls are distinct and we have to select 3 or more balls out of these balls. Since all balls are distinct, तो total balls हमारे लिए important है. Total is 24. 24 balls है और हर एक बॉल के लिए हमारे पास चॉइसेस कितनी है? देयर आर 2 choices in total, isn't it so? बट हमें क्या चाहिए एडिशनली? एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर मस्ट बी सेलेक्टेड. तो अगर सिर्फ हमारे पास 9 ब्लू बॉल्स होती, इफ देयर वर ओनली 9 ब्लू बॉल्स एंड दिस कंडीशन इज मस्ट दैट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 ब्लू बॉल, टोटल केसेस बनते हैं हमारे 2 to the power 9. बट सिंस एटलीस्ट 1 ब्लू बॉल मस्ट बी सेलेक्टेड यानी कि 0 ब्लू बॉल्स वाले केस को हम सब्ट्रैक्ट करते, तो 2 to the power 9 - 1 would be the case, would be number of ways when at least 1 blue ball is selected, isn't it so? So for blue balls, since you have to select at least 1 blue ball, cases will be 2 to the power 9 - 1. Similarly for green ball, this will be 2 to the power 8 total cases -1 case when 0 green balls are selected. Similarly for the red ball, 2 to the power 7 -1 case when 0 red balls are selected. तो ये हमारे टोटल केसेस आ गए. ठीक है, और अगेन यहाँ पे भी कुछ सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज 3 और मोर बॉल्स हमें चाहिए. एज सच इस लाइन का यहाँ पे कोई रेलेवेंस नहीं बिकॉज एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर हैज टू बी सेलेक्टेड. तो इवन ये मेंशन नहीं भी होगा तब भी 3 और मोर बॉल्स विल ऑलवेज बी सेलेक्टेड. तो दिस विल बी आवर आंसर 2 to the power 9 - 1 into 2 to the power 8 - 1 into 2 to the power 7 - 1. दिस विल बी द आंसर. और जस्ट इन केस अगर इस क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन कहता कि 4 और मोर बॉल्स हैव टू बी सेलेक्टेड, तब आंसर क्या होगा? इफ वी नीड टू सेलेक्ट 4 और मोर बॉल्स, तो टोटल जो हमारे केसेस निकले हैं उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 बॉल्स वाला केस. टोटल केम आउट टू बी 2 to the power 9 - 1 into 2 to the power 8 - 1 into 2 to the power 7 - 1, and we'll be subtracting those cases when exactly 3 balls were selected. And 3 balls were 1 blue, 1 green and 1 red. So 1 blue out of 9. So 9 C1 will be cases for selection of 1 blue ball multiplied by 1 green out of 8. So this will be 8 C1 and 1 red out of 7 multiplied by 7 C1. This will be our answer. Okay. Is that clear? ठीक है. और जस्ट इन केस क्वेश्चन हमारा होता सेम लैंग्वेज 9 ब्लू 8 green and 7 red, and condition was at least यानी कि number of blue balls should be greater than equal to 1, number of green balls should be greater than equal to 2, and there is no condition on red balls. ठीक है, any number of red balls greater than equal to 0. ठीक है, so if this was the question, so how many number of ways will be there? Now since this time we need at least 1 blue ball, at least 2 green balls, but red balls हमारी 0 भी होगी तो भी चलेगा. Total ways in this case will be 2 to the power 9 for blue अगर कोई कंडीशन नहीं होता, but
since we need at least one blue ball, so -1 करेंगे for 0 blue balls. This will be cases for blue balls. Similarly for green balls, 2 to the power 8 will be total cases, but we have to maintain at least 2 green balls. यानी कि कौन से cases subtract करेंगे? Minus when there is 0 green balls, that one case, plus when there are exactly 1 green balls, that is 8C1. So these two cases will be subtracted. तो 0 ball, 0 green ball और 1 green ball वाले केसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और रेड बॉल्स पे कोई कंडीशन नहीं, तो स्ट्रेट अवे 2 to the power 7 हो जाएगा. दिस विल बी आवर आंसर. Isn't it so? क्लियर है? ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ पे. Now let us say we have n distinct items and we have to group these items. Grouping of these items we have to do. And distinct items have to be divided into some groups. Okay, now let us say these have to be divided into 4 groups. One group containing A items, other group containing B items, one group containing C items and one group containing D items. So total items हमारे n है, तो A plus B plus C plus D that is equal to n. तभी तो सारे आइटम्स हमारे डिवाइड हो पाएंगे. ठीक है, एंड A B C D all these are unequal. A B C D are different. These values are different. If that is so, और हमें ग्रुप करना है n distinct items को in 4 groups such that first group contains A items, one group contains first thing, one group contains A items, one group contains B items, one group contains C items, one group contains D items. So in how many ways can this be done? In that case, the answer will be n factorial divided by A factorial into B factorial into C factorial into D factorial. This will be our answer. Basically, this is the answer when the group sizes are different. ठीक है, so different group size के केस में this will be the answer. We will take numerical examples for this. Don't worry. So different group sizes हो गए. Second case when group sizes are same. Are same in few cases. ठीक है, सारे ग्रुप साइजेस सेम होना जरूरी नहीं है, बट इफ सम ऑफ द ग्रुप साइजेस आर सेम, तब कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर एग्जांपल लेट अस से still we have n distinct items and there is one group with A items, one more group with A items, then there are 3 groups with B items and one group with C items. Total groups are 6. But out of these 6 groups, 2 groups have exactly A items, 3 groups have exactly B items and one group has exactly C items. So in how many ways this can be done? तो आंसर विल बी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फर्स्ट पार्ट जो हमारा है वो तो सेम ही रहेगा प्रीवियस क्वेश्चन की जगह. ठीक है, a फैक्टोरियल इंटू ए फैक्टोरियल यानी कि a फैक्टोरियल का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज देयर आर 2 ग्रुप्स विद एक्जैक्टली a आइटम्स, देन 3 ग्रुप्स विद एक्जैक्टली b आइटम्स, तो b फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई b फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई b फैक्टोरियल यानी कि b फैक्टोरियल का होल क्यूब हो जाएगा. एंड सिमिलरली सिंस देयर इज एक्जैक्टली वन ग्रुप विद c आइटम्स, तो मल्टीप्लाइड बाई c फैक्टोरियल. इतना पार्ट तो सेम है जो कि डिफरेंट ग्रुप साइज में भी होगा और सेम ग्रुप साइज में होगा. बट इसके बाद की चीज को ध्यान देना है हमें, वो क्या ध्यान देना है? सिंस देयर आर 2 ग्रुप्स विद एग्जैक्टली ए आइटम्स, ठीक है, विद एग्जैक्टली ए आइटम्स, ओके, सो यहां पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा विद 2 फैक्टोरियल एज वेल फॉर दैट. Similarly, there are 3 groups with exactly B items, so we'll also be dividing by 3 factorial because of this. So this will be our total number of ways in this case. Divide n distinct items into groups such that some of the groups have same articles, same number of articles. Okay. Clear? इसका लॉजिक भी समझ में आना चाहिए. ऑलरेडी हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस भी किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल लेट अस से वी हैव 5 items A, B, C, D and E. ठीक है, and then there are 3 groups. One group is containing A and B, the second group is containing C and D and third group is containing E. ठीक है, अब ये भी तो केस बन सकता है कि फर्स्ट ग्रुप इज कंटेनिंग लेट अस से C and D, सेकंड इज कंटेनिंग A and B, थर्ड इज कंटेनिंग E.
तो दोनों हमारे सेम ही तो है। तो इफ ग्रुप साइज है सेम, और यहाँ पे ग्रुप साइज क्या है, फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप साइज 2 है, सेकंड का 2 है, थर्ड का 1 है, ठीक है। सो इन दिस केस बेसिकली दीज टू आर एग्जैक्टली सेम। ठीक है, अभी हम यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन की बात करें, वी आर ओनली कंसर्न अबाउट सिलेक्शन एंड नॉट अरेंजमेंट। So in terms of selection, these two are exactly same, isn't it so? So that is why when we are making the cases of selection, so we'll be dividing by 2 factorial because of these two groups with identical size. So answer will be 5 factorial. Total base के लिए answer हो जाएगा 5 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial, and since there are two groups with same sizes, so into 2 factorial once more. So this will be the answer. That is 120 by 8, which is equal to 50. Okay. Clear है? So now let us say we have total 10 chocolates. And these 10 chocolates have to be distributed in such a manner that one of the child gets 1 chocolate, one gets 2 chocolate, one gets 3 chocolates, and one gets 4 chocolates. चाइल्ड को नहीं, चाइल्ड को रहने देते हैं बिकॉज अभी हम पहले ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो ग्रुपिंग में 10 चॉकलेट्स हैं. These have to be divided in 4 groups such that one group has 1 chocolate, one group has 2 chocolates, one group has 3 chocolates, and one group has 4 chocolates. Total number of ways क्या आ जाएंगे यहाँ पे? This will be 10 factorial since these 10 all 10 are distinct chocolates. ठीक है, सेम होंगी तो फिर जरूरत नहीं होगा ऐसा करने का. डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स, तो डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स के केस में दिस विल बी 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट अस से वी 8 चॉकलेट्स and these have to be divided in 3 groups. One group contains 1 chocolate, one group contains 2 chocolates, and one group contains 5 chocolates. The total number of ways क्या आ जाएगा? 8 factorial divided by 1 factorial, 2 factorial into 5 factorial. This will be our answer. इन दीज टू केसेस हमने जो जितने भी ग्रुप्स लिए सारे के सारे ग्रुप्स में नंबर ऑफ आइटम्स डिस्टिंक्ट थे. तो अब कुछ एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे कि नंबर ऑफ आइटम्स आर सेम इन सम ग्रुप्स. फॉर एग्जांपल लेट अस से वी हैव 12 टॉयज and these have to be divided in 4 groups, one containing 2 toys, one containing 3 toys, one containing 3 toys, and one containing 4 toys, and all these toys are distinct obviously. The number of ways in this case will be total है 12, 4 plus x is 12, 12 factorial divided by 2 factorial into 3 factorial into 3 factorial, which is 3 factorial whole squared, multiplied by 4 factorial. And since there are 2 groups with exactly 3 toys, तो इनका जो आपस का सिलेक्शन है रिपीट हो सकता है, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल करेंगे फॉर दिस. वन मोर एग्जांपल, लेट अस से 15 डिस्टिंक्ट आइटम्स आर देयर and these have to be divided into 2 groups of 3 items each. ठीक है, और देन 4 groups of 2 items each. टोटल हो गया हमारा 6 plus 8 14, and then 1 group of 1 item. तो नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे? दैट विल बी 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई देयर आर 2 groups of 3 items, 3 फैक्टोरियल होल स्क्वायर्ड, 4 groups of 2 items, so 2 factorial to the whole power 4, 1 factorial to the power 1, which is 1 only, multiplied by, since there are 2 groups with 3 items, so divided by 2 factorial करोगे, and 4 groups with 2 items, so divided by 4 factorial करोगे for this. So this will be our total ways of selection, ways of grouping in this case. Clear? Okay, समझ में आ गया? अब क्वेश्चंस करते हैं इसके बेस पे. तो फर्स्ट क्वेश्चन, in how many ways 6 different toys can be given to 3 children such that each gets at least 1 toy? 6 different toys have to be given to 3 children such that each is getting at least 1 toy. यहाँ पे हमें क्या करना है? अगेन ग्रुपिंग ही करना है, बट इस बार चिल्ड्रन है. ठीक है, चिल्ड्रन है तो ग्रुप्स आर डिस्टिंक्ट, इजंट इट सो? कितने वेज आएंगे? पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ. ठीक है, ऑल 6 टॉयज आर डिस्टिंक्ट एंड ऑल दीज 6 टॉयज हैव टू बी गिवन टू 3 चिल्ड्रन. और चिल्ड्रन है, पर्सन्स है, जब भी पर्सन्स होंगे पर्सन्स आर ऑलवेज डिस्टिंक्ट. पर्सन्स आर ऑलवेज डिस्टिंक्ट.
ठीक है, बॉक्सेस आइडेंटिकल हो सकते हैं, बॉक्सेस डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, बट पर्सन हमेशा डिस्टिंक्ट होंगे, चिल्ड्रन हमेशा डिस्टिंक्ट होंगे, बॉयज हमेशा डिस्टिंक्ट होंगे, गर्ल्स हमेशा डिस्टिंक्ट होंगे। तो यहाँ पे क्या है, ऑल डिस्टिंक्ट टॉयज आर बीइंग गिवन टू डिस्टिंक्ट पर्सन्स। दिस अरेंजमेंट इज बेसिकली फ्रॉम डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट, distinct items are being given to distinct persons. Okay, clear है? ठीक है, let us assume कि 3 children are A, B and C. टोटल टॉयज हैं हमारे पास 6, और एवरी चाइल्ड मस्ट गेट एटलीस्ट वन टॉय, एटलीस्ट वन टॉय, everyone should get at least one toy, that is the condition. So in such a case, एक बच्चे को मैक्सिमम कितने टॉयज मिल सकते हैं? सिंस देयर आर 3 चिल्ड्रन एंड एवरी चाइल्ड मस्ट गेट एट लीस्ट वन टॉय, सो इफ यू डिस्ट्रीब्यूट वन टॉय टू सी, वन टॉय टू बी, सो रिमेनिंग टॉयज ऑल, if they are given to exactly one child, so that will be equal to 4. यानी कि 4 is the maximum value that can be given, maximum number of toys that can be given to one child, isn't it so? हमेशा काउंटिंग स्टार्ट करो मैक्सिमम वैल्यू से, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमें सारे केसेस, पॉसिबल केसेस देखने पड़ेंगे। सो काउंटिंग को स्टार्ट करो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टार्ट करोगे तो कहीं पे भी मिस काउंटिंग नहीं होगा। और इसके बाद का भी तरीका है, ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, और वही अप्रोच तुम्हें अपने एंड पे फॉलो करना है उसके बाद में, ठीक है। सो वी कंसिडर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज फॉर चाइल्ड ए, ठीक है। अरेंजमेंट वाली चीज़ हम ये बाद में देख लेंगे, पहले सारे केसेस देख लेते हैं। तो 4 1 1 इज वन केस, ठीक है। नाउ कीप 4 सेम हियर, बट क्या हम यहाँ पे कोई और वेरिएशन कर सकते हैं? इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 1 दिस बिकम्स 0, बट एवरी चाइल्ड मस्ट गेट एटलीस्ट वन टॉय, यानी कि 4 1 1। इफ वी आर गिविंग 4 टॉयज टू वन चिल्ड्रन इन वन चाइल्ड, इन दैट केस देयर इज नो अदर केस पॉसिबल, यानी कि 4 1 1 वाला ही केस बनेगा हमारा, ठीक है। सो इन सेकंड सिनेरियो विल बी सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम दिस 4, second case could be 3 toys with child A. Now we have 3 more toys remaining, क्योंकि हमने एक वैल्यू रिड्यूस कर दिया, 1 वैल्यू हैज बीन रिड्यूस्ड, सो नाउ वी कैन गिव 2 to B and 1 to C, 3 2 1। नाउ कीप दिस 3 फिक्स्ड, इस 3 को फिक्स रखो, ठीक है। नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट, बिकॉज 2 से अब इस वैल्यू को इंक्रीज तो नहीं करोगे, ठीक है, पहले हमने मैक्सिमम वैल्यू लिया है। नाउ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दिस 2, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दिस 2 दिस बिकम्स 1, एंड दिस सब्ट्रैक्शन, ये वैल्यू तुम्हें 1 इंक्रीज करना है यहाँ पे, तो दिस विल बी 2। नाउ दिस केस कुड बी 3 1 2, बट ये केस हमने ऑलरेडी कंसिडर किया हुआ है, दिस केस हैज ऑलरेडी बीन कंसिडर्ड, यानी कि 3 इफ 3 टॉयज आर गिवन टू वन पर्सन, तो वहां पे भी हमारे पास एग्जैक्टली एक ही केस बनने वाला है, दैट इज 3 to 1 ओनली। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, वहां पे भी हमारा सेकंड केस नहीं बनेगा। अब इसके बाद का सिनेरियो क्या बन सकता है? रिड्यूस 1 मोर फ्रॉम दिस 3, नाउ दिस बिकम्स 2, ठीक है। सो इफ 2 टॉयज हैव बीन गिवन टू वन चाइल्ड, देन सेकंड चाइल्ड को मैक्सिमम तुम कितना दे पाओगे? 2 दे पाओगे, एंड देन रिमेनिंग इज ऑल्सो 2। तो यहाँ पे भी हमारा केस बनेगा 2 2 2, और अगेन फिर सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे तो दिस बिकम्स 2 1 3, विच इज अगेन रिपीटिशन। सो देयर आर ओनली 3 केसेस पॉसिबल, 4 1 1, 3 2 1 और 2 2 2। 3 केसेस, 4 1 1, 3 2 1 एंड 2 2 2। इज दैट क्लियर? अब हमें टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। सबसे पहले सिलेक्शन के वेज निकालेंगे, उसके बाद में फिर अरेंजमेंट के वेज निकालेंगे। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन क्या होगा? सिंस वी आर क्रिएटिंग 3 ग्रुप्स, वन ग्रुप इज कंटेनिंग 4 आइटम्स, वन ग्रुप इज कंटेनिंग 1 आइटम, वन ग्रुप इज कंटेनिंग 1 आइटम, सो नंबर ऑफ वेज विल बी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ओके, दिस विल बी 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, जो ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट हमने सीखा उसके बेसिस पे। नाउ क्लियर है? अच्छा, एक चीज मिस हो गया यहाँ पे। क्या मिस हुआ? सिंस वी हैव 2 ग्रुप्स विद एग्जैक्टली 1 आइटम, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल भी करोगे। Okay, so this is way of selection. Now arrangement, since A, B, C all are distinct, तो multiplied by 3 factorial कर दोगे। Since all are distinct, तो multiplied by 3 factorial कर दोगे। Second case, one group is containing 3, one is containing 2, one is containing 1. Answer will be 6 factorial. Selection will be 6 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial into 1 factorial, multiplied by 3 factorial for arrangement. Third case, 6 factorial divided by 2 factorial whole cube. Isn't it so? And since all 3 groups have same items, so multiply divided by 3 factorial भी करोगे addition for these arrangements, okay, and then multiplied by 3 factorial for 3 children. So selection is first part and arrangement among children, that is the second part. Clear? क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ओके।
दिस विल बी आवर आंसर इन दिस केस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अभी हमारे पास डिस्टिंक्ट टॉयज थे और दे वर गिवन टू डिस्टिंक्ट पर्सन्स। सेकेंड सिनेरियो लेते हैं। इफ जस्ट इन केस द टॉयज आर आइडेंटिकल, 6 टॉयज ही हैं बट दिस टाइम टॉयज आर आइडेंटिकल एंड चिल्ड्रन आर 3 चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रन तो डिस्टिंक्ट ही रहेंगे, पर्सन तो डिस्टिंक्ट ही रहेंगे हमेशा। ठीक है, बस टॉयज आर आइडेंटिकल और सिमिलर। दिस टाइम वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग आइडेंटिकल आइटम्स टू डिस्टिंक्ट पर्सन्स और सिमिलर आइटम्स टू डिस्टिंक्ट पर्सन्स। टोटल टॉयज हैं 6 एंड टोटल चिल्ड्रन आर 3। अगेन केसेस बनाते हैं। क्या केसेस बनेंगे हमारे? स्टिल सेम केसेस, 114 411, वही 3 केसेस बनेंगे। 411 बिकॉज यहाँ पे भी कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 1 टॉय शुड बी गिवन टू ईच चाइल्ड, तो 411 3 2 1 एंड लास्टली 2 2 2। यही 3 केसेस बनेंगे हमारे, isn't it so? But this time we know that all 6 toys are identical. तो 411 डिस्ट्रीब्यूशन के वेज कितने आएंगे? नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना आएगा? नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आएगा इस बार हमारा एग्जैक्टली 1। ओके, एग्जैक्टली 1 आएगा बिकॉज ऑल 6 टॉयज आर आइडेंटिकल। ओके, और क्योंकि हमने अभी जो ग्रुपिंग सीखा था वो सीखा था किसके लिए? व्हेन ऑल आइटम्स आर डिस्टिंक्ट। ये जो ग्रुपिंग सीखा था व्हेन ऑल आइटम्स आर डिस्टिंक्ट, बट दिस टाइम सिंस आइटम्स आर आइडेंटिकल तो हमें यहाँ पे अरेंजमेंट के समय ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, कि अरेंजमेंट कैसे होगा, बिकॉज आइटम्स का सिलेक्शन का वे तो एक ही है। बट इन केस ऑफ अरेंजमेंट दिस विल बी 3 फैक्टोरियल फॉर 3 डिस्टिंक्ट पर्सन्स, बट आउट ऑफ दीज 3 2 persons are carrying exactly 1 item, so we'll be dividing by 2 factorial. So this will be 1 into 3 factorial by 2 factorial, यानी कि total base will be equal to 3. Okay, क्या ये clear है? Second case 3 to 1, again number of base will be exactly 1, but since every child is getting different items, so arrangement के base हो जाएंगे into 3 factorial, which is equal to 6. Third scenario में exactly 1 way to distribute 2 items which are all identical, and then since every child is getting exactly 2 items, तो इसका अरेंजमेंट का वे भी exactly 1 ही होगा बिकॉज सारे के सारे आइटम्स तो सेम ही है। तो 1 into 1 यानी कि exactly 1 वे है। टोटल वेज विल बी 3 + 6 + 1 which is equal to 10 ways in total. So our answer will be 10 ways in total to distribute 6 identical toys to 3 children such that every child gets at least 1 toy. Okay. Since if all items are identical, तो आइडेंटिकल के केस में क्या होगा? सिलेक्शन का वे एक ही होगा। जब हमने केसेस बना लिए तो एक केस में सिलेक्शन का एक ही वे होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन के वेज विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, बट अरेंजमेंट में हमें कॉशियस रहना पड़ेगा कि इफ 2 पर्सन्स आर गेटिंग सेम नंबर ऑफ आइटम्स तो वहां पे हमारा उस चीज को ध्यान देना पड़ेगा। ओके, क्लियर है? ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली लेट अस से 3 चिल्ड्रन आर A, B and C. If you are distributing 4 1 1 items, so 4 1 1, अब इन 1 1 को आपस में अरेंज करोगे तो क्या बनेगा मामला? स्टिल इट विल बी 1 1 and 4 ओनली। सो ये दोनों तो एक ही बात हो जाएगी। 3 फैक्टोरियल करोगे तो ये दोनों केसेस तो सेम ही है। दैट इज वाई हम डिवाइड करेंगे 3 फैक्टोरियल से, सॉरी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, नॉट 3 फैक्टोरियल, बिकॉज 2 आइटम्स आर सेम। जब 3 आइटम सेम होंगे एज इन दिस केस, तो वी विल बी डिवाइडिंग बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल बाई 3, दैट विल बी इक्वल टू एक्जैक्टली 1 केस। क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना है, बस शांति से इस बात को पहले सुनोगे, समझोगे, अपने एंड पे अप्लाई करोगे और 1 2 4 एग्जाम्पल अपने एंड पे सॉल्व कर लोगे तो यू विल बी कॉन्फिडेंट कि कहाँ पे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, याद रखोगे तो भूल जाओगे, प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है और लॉजिक क्या है और क्यों हमें ऐसा करना है। वाई इन डिफरेंट आइटम्स वाला केस में हमने अरेंजमेंट जब सिलेक्शन किया तो वहाँ पे डिवाइड किया। ठीक है, और यहाँ पे भी सिलेक्शन के टाइम पे दे विल बी एक्जैक्टली 1 वे। दैट इज वाई हमें जब अरेंजमेंट कर रहे होंगे उस समय कॉशियस रहना पड़ेगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन हाउ मेनी वेज 6 आइडेंटिकल टॉयज कैन बी गिवन टू 3 चिल्ड्रन? 6 आइडेंटिकल टॉयज कैन बी गिवन टू 3 चिल्ड्रन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में वेरिएशन क्या आया कि वेरिएशन ये आया है कि इस बार कंडीशन ये नहीं है कि एटलीस्ट 1,
टॉय मस्ट बी गिवन ईच चाइल्ड, तो वो हमारा कंडीशन नहीं है, तो हमें टोटल केसेस निकालने पड़ेंगे जहाँ पे कि कई केसेस में जीरो भी होगा, ठीक है, यानी कि 600 इज ऑल्सो वैलिड केस, और 510 इज ऑल्सो वैलिड केस, और 411 एंड सो ऑन। तो मल्टीपल केसेस बनेंगे, हमें सारे केसेस काउंट करने हैं इस बार 3 केसेस से काम नहीं चलेगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं कि एक चाइल्ड को पहले सारे के सारे टॉयज दे दो, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर बाकी सारे केसेस काउंट करते जाएंगे, ठीक है। तो एक चाइल्ड को सारे टॉयज दे दो, फर्स्ट केस कुड बी 600 600। नाउ फ्रॉम 6 1 रिड्यूस कर दो, तो दिस विल बी 510, ओके। अब 510 में 501 कर दो के बात एक ही है, तो एक ही केस को डबल काउंट नहीं करना है, ध्यान रखना है। तो सब्ट्रैक्ट वन मोर, नाउ दिस बिकम्स 420, एंड देन 4 2 में 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 411, दिस विल बी अनदर केस। अगेन फिर से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो 402 हो जाएगा, विच इज सेम एज 420। तो फिर फर्दर सब्ट्रैक्ट करो, इस नंबर में से 4 से आया 3, 3 के बाद में रिमेनिंग बचा है 3, तो 330, देन 3 2 1, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट किया 312 बन जाएगा, अगेन रिपीटेशन ऑफ 3 to 1 ओनली, ओके। तो 321 वाला केस भी हो गया हमारा। देन नेक्स्ट होगा 2 2, दीज शुड बी ऑल द केसेस। कितने केसेस बने हमारे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल केसेस बने 7। अब इनका अरेंजमेंट भी करना है हमें, ठीक है। हर एक केस में नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना होगा? 1 ही होगा, सिंस ऑल टॉयज आर आइडेंटिकल, सिमिलर थिंग्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट पर्सन्स, सिमिलर टू डिफरेंट, ओके। एग्जैक्टली 1 वे फॉर 600। अब अरेंजमेंट के वेज कितने होंगे? सिंस 2 पर्सन्स आर गेटिंग एग्जैक्टली 0 आइटम्स, एग्जैक्टली सेम आइटम्स, सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन क्या होगा? दैट विल बी 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, यानी कि 3 आइटम्स, 3 वेज टू अरेंज। देन सेकंड केस में ऑल 3 आर डिस्टिंक्ट, तो 1 इंटू 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6। थर्ड सिनेरियो ऑल 3 डिस्टिंक्ट, तो 1 इंटू 3 फैक्टोरियल 6। फोर्थ केस 2 आर सेम, तो 1 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 3। फोर्थ केस 330, अगेन 2 सेम, तो 1 into 3 factorial by 2 factorial which is equal to 3. All 3 distinct, तो 1 into 3 factorial which is equal to 6. And next case all 3 same, तो 1 into 3 factorial divided by 3 factorial which is equal to 1 only. Total cases क्या आ जाएंगे? टोटल आंसर क्या आ जाएगा? 6 plus 3 9 plus 6 15, 15 plus 6 21 plus 7 28 ways should be there, okay, 28 ways should be there. क्या ये क्लियर? टोटल आंसर विल बी 28। हमने सारे के सारे केसेस प्रॉपर्ली काउंट कर लिए, ओके। नाउ इफ यू अंडरस्टूड दैट, तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट इज इन हाउ मेनी वेज 6 डिस्टिंक्ट टॉयज कैन बी गिवन टू 3 चिल्ड्रन। इस बार केस क्या है? ऑल टॉयज आर डिस्टिंक्ट एंड दोज टॉयज हैव टू बी गिवन, दोज डिस्टिंक्ट टॉयज हैव टू बी गिवन टू डिस्टिंक्ट पर्सन्स, एंड डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट वाला अरेंजमेंट है हमारा। कितने वेज आएंगे यहाँ पे? पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। कितने नंबर ऑफ वेज आने वाले हैं? इफ यू स्टार्टेड मेकिंग ऑल द केसेस, या सारे केसेस तो हमने पहले ही बना लिए थे, ठीक है, तो उनके हिसाब से अगर पूरा का पूरा कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया है तो दैट इज फाइन, बट क्या उसकी ज़रूरत है? बिकॉज ऑल टॉय आर डिस्टिंक्ट, ऑल चिल्ड्रन आर डिस्टिंक्ट, तो बेसिकली कितने केसेस बनने वाले हैं? तुमने टॉय 1 को उठाया फॉर एग्जाम्पल, टॉय 1 कैन बी गिवन टू चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3। हर एक टॉय के लिए टोटल 3 केसेस बनने वाले हैं, 3 में से किसी एक को मिल जाएगा। तो फॉर एवरी टॉय देयर आर 3 केसेस, 3 पॉसिबिलिटीज, 3 चॉइसेस, isn't it so? Total ways will be 3 to the power 6. ये आंसर हो जाएगा अपना 729। तो टोटल वेज विल बी 729 स्ट्रेट अवे, isn't it so? इसके लिए तो सारे केसेस बनाने की जरूरत नहीं है। अगर केसेस बनाओगे तो भी आंसर सेम ही आएगा अपना, बट क्या केसेस बनाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, बिकॉज फॉर एवरी टॉय देयर आर एग्जैक्टली 3 चॉइसेस, और टोटल हर एक टॉय के लिए जो चॉइस है वो इंडिपेंडेंट है। 3 to power 6 विल बी आवर आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब एक बार सारे के सारे केसेस को अपना जो प्रेजेंट ऑलरेडी हमने केसेस बनाए हुए वहाँ पे देखते हैं, कर लेते हैं एक बार। दीज आर टोटल केसेस, ठीक है। दिस टाइम लेट अस कैलकुलेट दिस विद, यहाँ पे हमने किया था फॉर सिमिलर टॉयज, ओके। नाउ लेट अस कैलकुलेट दिस फॉर डिस्टिंक्ट टॉयज। सो इफ नंबर ऑफ टॉयज आर डिस्टिंक्ट, तो सिलेक्शन के वेज निकालते हैं, फिर अरेंजमेंट के वेज निकालेंगे। सिलेक्शन मल्टीप्लाइड बाई अरेंजमेंट, तो 600 फर्स्ट केस में सिलेक्शन के कितने वेज आएंगे? टोटल केसेस हैं 7। फर्स्ट केस में नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना आएगा? सिंस ऑल 6 हैव टू बी गिवन टू एग्जैक्टली 1 पर्सन, तो सिलेक्शन के वेज क्या होंगे? 66।
और बेसिकली 6 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 1. नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन दैट इज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट अगेन सिलेक्शन में ही तुम कर लो 1 वे आया है, ठीक है. और फिर ओके अरेंजमेंट में क्या आएगा, दिस विल बी 3 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा विच इज इक्वल टू 3. ठीक है, क्लियर. सेकंड केस 5 1 1 number of ways of selection 6 factorial by 5 factorial into 1 factorial that will be equal to 6 only multiplied by 3 factorial which is equal to 36. Third scenario 6 factorial divided by 4 factorial into 2 factorial that is equal to 15 multiplied by number of ways of arrangement 3 factorial so that is 90. Fourth case 4 1 so number of ways of selection 4 1 में this will be 6 factorial divided by 4 factorial into 1 factorial 1 factorial that is equal to 30 multiplied by arrangement this will be 3 factorial divided by 2 factorial यानी कि this is equal to 3 30 into 3 that is 90. Okay, fifth case 3 3 0 this is 6 factorial divided by 3 factorial into 3 factorial यानी कि that is equal to 20 multiplied by 3 factorial by 2 factorial which is equal to 60. Sixth case 3 2 1 so 6 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial that is equal to 654 divided by 2 so 60 multiplied by 3 factorial which will be 360. And last case 2 2 2 6 factorial divided by 2 factorial 2 factorial 2 factorial 6 factorial by 8 720 by 8 that is equal to 90 into 3 factorial by 3 factorial which is equal to 90 only 90 into 1 90 total आ गया हमारा 90 plus 360 450 510 600 690 plus 39 that is 729 will be total number of ways. 729 will be total number of ways. Is that clear? Okay, so that will be our answer. क्योंकि स्ट्रेट अवे हमारा निकल ही रहा था, वैसे इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी एक बार पूरे केसेस में हमने काउंटिंग कर लिया. क्लियर है? ठीक है. तो देखो यहाँ पे एक जगह डाउट आ सकता है कि देखो फॉर एग्जांपल हमने जब ग्रुपिंग सीखा तो इफ देयर वर n डिस्टिंक्ट आइटम्स and that were distributed, let us say, in 4 groups: A items in 1, A items in 1, B items in 1, and C items in 1. A plus B plus C, that is total was equal to n. ठीक है. So since 2 groups have exactly same items, so number of ways क्या हो जाएगा, n factorial divided by A factorial whole squared into B factorial into C factorial. ठीक है. और इसके बाद में since there are 2 groups with exactly 2 same items, so divide by 2 factorial हमने कर दिया. ठीक है. तो अगर यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया और देयर आर 4 पर्सन्स जिनको कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन आइटम्स को, सो अरेंजमेंट के बेस हो जाएंगे मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल. ठीक है. अगर तुमने यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं किया तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि दिस इज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ए फैक्टोरियल होल स्क्वायर इनटू बी फैक्टोरियल इनटू सी फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई अरेंजमेंट के टाइम पे ध्यान दे लो, सिंस देयर आर 2 पर्सन्स गेटिंग सेम नंबर ऑफ आइटम्स, तो यहाँ पे ध्यान दे लो तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल कर दोगे. दोनों बातें एक ही है, दोनों बातें एक ही. तो या तो सिलेक्शन के टाइम पे, ग्रुपिंग के टाइम पे ध्यान दे लिया हमने, या फिर अरेंजमेंट के टाइम ध्यान दे लिया. जिस भी तरह से तुम कंफर्टेबल हो, बोथ वेज आर एग्जैक्टली द सेम. ओके, फिर इतना ही रखते हैं सेशन में. एंड आई बिलीव जो भी डिस्कस किया वो समझ में आएगा. एंड इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसएवर देन मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट. और अगर सेशन पसंद आया तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन एज वेल. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग.